السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ کے من پسند پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ، اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم پچھلے کئی ایپیسوڈز میں اس ٹاپک کے سبجیکٹ پر بات کر رہے ہیں کہ خوف کیا ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کافی غلط رواجات ہیں جن کی وجہ سے ہم دین سے، مذہب سے دور چلے جاتے ہیں اور اس قدر اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو مہمان ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب، جنہوں نے پچھلے کئی ایپیسوڈز میں ان سوالوں کے جوابات دیے ہیں اور آپ لوگوں کو اس سے کافی فائدہ ہوا ہوگا، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ۔ تو ہم شیخ صاحب کا پھر سے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شیخ صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ شیخ صاحب نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم و فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ MBA مکمل کر چکے ہیں امریکہ یونیورسٹی سے اور اس وقت PhD کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے۔ تو شیخ صاحب، جو گفتگو ہماری جاری ہے خوف کے سلسلے میں، ہم نے کافی ٹاپکس پر بات کی، کافی سوالات آئے آڈینس کی طرف سے، اور جن و جنات شیاطین کے بارے میں ہم نے بات کی، ان کی طاقت کے بارے میں بات کی۔ آپ نے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ لوگوں نے اپنے سوالات بھیجے واٹس ایپ کے تھرو، ای میلز کے تھرو۔ آڈینس جو نمبر ہمارے اسکرین پر ہیں، آپ اس پر اس وقت بھی میسج بھیج سکتے ہیں، ای میل بھیج سکتے ہیں۔ ہم ان کو پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے یا پھر اگلے ایپیسوڈز میں ان کا جواب دیں گے۔ تو شیخ صاحب، جو اگلا سوال ہمارے پاس ہے وہ جنات سے ریلیٹڈ ہے۔ جنات کی طاقت کے بارے میں تو آپ نے بتایا، ان کی کمزوریوں کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ کمزوریوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر ہم پڑھتے ہیں سورہ نساء تو اس میں ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کتنا بھی مکر و فریب کر کے تمہارے سامنے پیش کرے، لیکن آخری میں شیطان کا مکر و فریب جو ہے نا بہت ہی کمزور ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن بھی ہے۔ شیطان چاہتا کیا ہے ہم سے؟ شیطان چاہتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو گمراہ کر دے۔ جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تب وہ پاورفل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن مجید کو اگر مضبوطی سے تھام لیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے، ہر فتنے سے بچنے کا راستہ یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو تو ہدایت کا راستہ مانگنا پڑے گا۔ تو بڑی آسانی کے ساتھ شیطان کمزور کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کو موقع نہیں دیتے جی۔ لیکن وہی شیطان ہمارے اوپر بھاری پڑ سکتا ہے اگر ہم اس کے باتوں پہ چلے جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اگر کوئی اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ شیطان ہے کمزور، لیکن شیطان پاورفل کب ہو جاتا ہے؟ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو شیطان عذاب کے طور پر انسان پر مسلط ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں کہا کہ جو قرآن مجید کو اپنی زندگی کا لائف اسٹائل نہیں بناتے تو وہ سارے لوگ بھی، ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ قسم قسم کے وسوسے، ان کی قسم میں ڈراؤنے خواب، ڈراؤنی، ان کا سونا بھی ڈراؤنا پن اور ان کا اٹھنا بھی ڈراؤنا پن، جن کے، جادو کے، وہم کے، بہت سارے قسم کے بیماریاں، یہ ساری چیزوں سے اس کی زندگی پوری خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کی زندگی کو ہم اجیرن کر دیتے ہیں، بہت ہی پریشان کن۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا اٹھایا جائے گا، دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو آنکھ تھی لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، فَنَسِيتَهَا، تو نے کیا کر دیا، اس کو بھلا ڈالا، تو دیکھ کر بھی انجان بنا رہا۔ گویا کہ معجزے تو نے دیکھا، قرآن میں تو نے دیکھا، تیرا دیکھنا اور نہ دیکھنا دونوں برابر تھا۔
जैसा कोई अंधा है, अगर नहीं देखता है तो उसका हाल क्या होता है? तूने वैसा बिहेव किया जैसा कि तू अंधा है, देखा ही नहीं। जब तू दुनिया में मेरी आयतों से अंधा रहा तो अब ये हशर के मैदान में भी तुझे अंधा कर दिया। वो कज़ालिकल यौमा तुनसा, जैसा तूने उसको भुला डाला आज भी तुझे भी भुला दिया जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि शैतान अजाब के तौर पर भी आते हैं। कमजोर है शैतान, लेकिन कुव्वत वाला बन जाता है उस वक्त पर जबकि अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं होती है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा और अल्लाह ताला तुम्हारे कदम को जमा देगा। तो शेख साहब, हम आपसे और जानना चाहेंगे इस टॉपिक पे। जन्नात का अभी टॉपिक चल रहा है। जन्नात इंसान को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं, इसकी वजह क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जो तहकीक की है उलमा कराम ने सर्वे करके मालूम किया 3 वजह हो सकती है। 3 में से एक वजह हो सकती है क्यों हमारे पीछे पड़ते हैं वो लोग, या तो बलाई, इंतकामी या अजाबी। 3 तरह के होते हैं। शैतान अजाबी तौर पर अल्लाह की तरफ से अजाब के तौर पर कभी अल्लाह ताला खुद इंसान पे मुसल्लत करते हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी तफसील से किया, ये अजाबी हुआ। दूसरा जो होता है इंतकामी, यानी कि अजाबी कब होता है जब इंसान बुरा होता है जी। दूसरा होता है इंतकामी। इंतकामी कब होता है जब इंसान ने उसको कुछ तकलीफ पहुंचाई हो, जैसा कि हाँ अनजाने में भी अगर होता है तो वो लोग बदला लेते। जैसा कि मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर बयान करते हुए कहा कि सुराख में पेशाब मत करो। जमीन में जो सुराख बने होते हैं, बाद औक़ात होता है कि वहाँ पर सांप होते हैं, उनको आपने तकलीफ दी, लेकिन अक्सर ऐसे सुराखों में जिन भी जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अल्लाह का जिक्र नहीं होता है। और कई लोग पेशाब करते हुए पर ख़ास तौर से सुराख में करते हैं, तो बाद औक़ात शैतान उसी धारी को पकड़ के शर्मगाह के रास्ते से अंदर चला जाता है। और ये सबसे ख़तरनाक किस्म की तकलीफ दे चीज़ होती है जब वो शर्मगाह के रास्ते से जाता है, बहुत तकलीफ देता है। क्यों? इसलिए कि हमने उसको तकलीफ पहुंचाई तो अब वो अंदर जाकर हमें बहुत किस्म की तकलीफ पहुंचाता है। पेट में कई किस्म के बीमारियां, सर में कई किस्म के बीमारियां वो पैदा करते हैं। अंदर जाने की ताकत है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यजरी मजरद दम, सही बुखारी के अल्फाज है। एहतिकाफ की जब बात हो रही थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलिया से बात कर रहे थे, 2 सहाबा गुजरे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रुको, ये मेरी बीवी है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर शक करेंगे क्या? कहा कि नहीं, शैतान तो जैसा खून दौड़ता है वैसा दौड़ता है। इंसान का खून जहाँ जहाँ जाता है वैसा जिन भी अंदर दाखिल होता है। इस पर हम एक मुस्तकिल एपिसोड लेंगे। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आता, आखिर अंदर जाते कैसे है, क्या है पॉसिबल है, क्या है, एक अलग टॉपिक है। तो शैतान यहाँ पर इंतकाम के तौर पे जा रहा है, या जिन इंतकाम के तौर पे आता है। इसी तरह से आपने अक्सर हमारे ख़वातीन जो बावर्ची खाने में, किचन में गर्म पानी फेंकते पर एहतियात नहीं करते, अक्सर ये मोहरी जहाँ पर से गिलादत जाती है वहाँ पर गर्म पानी डाल देते हैं। सुराखों में गर्म पानी डालने से बचना चाहिए, पेशाब करने से बचना चाहिए। जहाँ जहाँ भी सुराख होते हैं ख़ास तौर से वहाँ पर इसका खास ख्याल रखें, बिस्मिल्लाह कहकर आप पानी डालें अगर फेंकना भी है तो शैतान का हमले से बच जाए। इंतकामी, अजाबी, बलाई। बाद औक़ात नेक लोगों को भी जिन परेशान करते, शैतान उनके बुराई की वजह से नहीं, गुनाह की वजह से नहीं, वो एक आजमाइश है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आजमाइश होती है नेक लोगों की भी। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शैतान ने आकर सताया, बैतुल माल पर वो मामूर थे और वो सामान ले जाने की कोशिश कर रहा था, अनाज ले जाने की कोशिश कर रहा था, यानी सताते हैं। बहुत सारे सहाबा कराम हैं उनके सीने में जिन आ गया, सताने लगा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उखरुज या अदुव्वल्लाह, ऐ अल्लाह के दुश्मन तू अंदर से निकल, क्यों सता रहा है? खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो शैतान शोला फेंकने की कोशिश कर रहा है, या तो दिल लगी के तौर पर, या तो मजाक के तौर पर, या तो उनको हसद भी होता है। जैसा कि सूरे फलक में मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद में तफसीर तबरी और तफसीर इब्न कसीर में लिखा हुआ है कि हसद इंसान को भी हो सकता है और जिन को भी हो सकता है। उसकी बुनियाद पर उसके अंदर से नजर बद जन्म लेती। तो ये जिनों की जो नजर बद होती है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो इन तफसीलात से हमें पता चला कि अज़ाब के तौर पर आता है तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरी बात होगी कि अल्लाह भी नाराज़ और ऊपर से शैतान भी हावी। इंतकाम के तौर पर आ रहा है तो हमदर्दी का मामला करना चाहिए उस बेचारे के साथ कि उसको पता नहीं था, अनजाने में बहरहाल उसने तकलीफ दी। अगर जानबूझ के तकलीफ देने की नीयत से उसने सराख में पेशाब किया तब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि सुराखों में पेशाब मत करो,
اور تم جو ہے نا اپنے اطراف و اکناف کے یہ جتنے بھی گندگی غلاظت ہے وہاں پر تم خیال رکھو. معلومات ہونے کے باوجود بھی اگر آدمی سستی کرتا ہے تو پھر یہ بری بات بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کا پہلے ہی آپ نے جواب دے دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں اگر آسمان میں پرندہ اڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بھی بتا دیا. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات. ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. گھر گھر کے مسائل شیخ خالد جمیل مکی کے ساتھ جانیے گھروں میں پیش آنے والے مسائل کے حل. ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی چیز ڈھونڈنا ہو اپنے ایک رسی بھی تو میں قرآن مجید میں تلاش کروں گا. مطلب یہ ہے کہ میں اپنے سارے مسائل کا حل جو ہے قرآن مجید اور صحیح احادیث میں ہم کو مل ہی جائے گا کیونکہ وہ ہدایت کے لیے کتاب آئی. تو یہاں پر وہ سوال اٹھتا ہے کہ جن پر بھی جادو کا یا جن کا حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا وہ لوگ گندے لوگ ہیں؟ مثال طور پہ بعض لوگ جب ان کو جن ستاتا ہے جادو کا اثر ہوتا ہے تو وہ لوگ شرم کے مارے جا کر کسی معالج کو علاج کرنے والے جیسے دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر ہوتے ہیں ویسا روحانی بیماریوں کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ان کو جا کر بتاتے نہیں. ان کے دماغ میں آتا ہے پتہ نہیں لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید میں کچھ گناہ کیا ہوں اس وجہ سے مجھ پر یہ بیماری آ گئی ہے تو وہ خجالت کے شرم میں آ کر بتاتے نہیں. اصل میں غلط فہمی ہے. اگر جادو کا اٹیک ہونا یا جن کا اٹیک ہونا واقع کوئی ہمیشہ برا عذاب کے طور پہ ہونا کوئی ضروری نہیں, آزمائش کے طور پہ بھی ہوتا. نیک لوگوں کو کیا ہم یہ مان لیں کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بعض جادو کے مکمل اثرات تو نہیں ہوئے, کچھ لائٹ جس کو ہم کہتے ہیں مطبوب, مسحور اور مطبوب میں فرق ہے. انشاءاللہ ہم وہ بھی ایپیسوڈ لیں گے جو انکار کرتے ہیں. مسحور نے مطبوب یعنی کہ جادو کے کئی لیولز ہیں تو آخری جو لیول ہوتا ہے بھولنے کا اس ٹائپ کا کچھ اثر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور صحابہ کرام پر بھی اس کے اثرات دیکھے گئے. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہلتے ہوئے رسیوں کو جو سانپ نظر آئے اس کو دیکھ کر ان کے اندر خوف پیدا ہوا. تو نیک لوگوں پر بھی جادو اور جن کی وجہ سے کچھ خوف آ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برے لوگ. جی اس میں ہمارے ایک تسلی ہے. ہمارے کئی بھائی جو جنات یا جادو کے مسئلے کو لے کر خاندان میں پریشان ہے, پتہ نہیں مجھ سے کیا عذاب ہو گیا, کہ یہ لوگ دوہرے غم میں مبتلا ہے. کیونکہ خوف کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ غم. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ بندہ خوف میں رہے, وہ چاہتا ہے کیونکہ اس کو آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد سے حسد ہے کیونکہ میں سجدہ نہیں کیا تو میں جہنم میں گیا. تو اس کی لاجک کیا ہے؟ جب بھی خوف کرے گا اور غم میں دیکھے گا تو وہ خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمت کو تم بیان کرو. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمتیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس کو بتائے, خوش و خرم رہے. ہمیشہ غم کا چہرہ ڈال کر رہیں گے تو شیطان خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے ہم کو. تو شیطان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ غم میں مبتلا کرے, ڈبل غم میں مبتلا ہو جاتا ہے. پہلے تو جادو جن سے پریشان ہے, پھر اوپر سے کیا مجھ سے عذاب ہوا. نہیں, اللہ کے ساتھ اچھا سوچیے, اچھا گمان رکھے. اللہ تعالیٰ کسی ایک آنے والے تکبر سے یا کوئی بڑی بیماری سے ہو سکتا بچا رہے ہوں گے, یا آپ کو پریکاشن لینا سکھا رہے ہوں گے, یا اس بہانے اللہ کے قریب آپ ہو جائیں گے. کیونکہ حدیث شریف کیا ہے, اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی نیک بندے کو اس کے کچھ اچھے عمل کی وجہ سے پسند کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ جنت میں آ جائے, لیکن وہ بندے کے عمل اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ جنت میں چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرتے ہیں؟ مصیبت ڈالتے ہیں. وہ مصیبت میں کہتا ہے یا اللہ یہ میرے ساتھ, یا اللہ اتنے مرتبہ کہتا ہے, اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ جتنے مرتبہ کہے اس کے نیکیاں لکھتے چلے جاؤ. بعض اوقات مصیبت میں اللہ کہنے کی وجہ سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو اچھے راستے میں آ کے ایک آدمی بات کر کے نہیں پاتا. صبر سے بھی جنت پا سکتے ہو, شکر سے بھی جنت پا سکتے ہو. اچھا یا پا کر شکر کرنا نہ بھولو, مصیبت میں صبر کا دامن نہ چھوڑو, تو اللہ کی رحمتیں کھلی ہوئی. انشاءاللہ. سبحان اللہ. اگر اس کی آزمائش ہم پر ہو تو اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں.
शेख साहब, जो आज का सवाल है मैं प्ले करने की इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाकिर है। मेरा सवाल ये था, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आपके लिए फला कलर अच्छा है, ये कलर की चीज़ लेनी चाहिए, या फला नंबर जो है लकी है, क्या अनलकी लकी हमारे लिए ऐसा होता है? कुछ लोग बहुत मानते हैं सिक्कों कि मेरा ये सवाल था, क्या हमारे लिए कोई चीज़ अच्छी है बुरी हो सकती है नंबर और कलर के लिहाज से? शुक्रिया। देखिए, एक अच्छा शगुन या बुरा शगुन, जैसे हम कहते हैं इसके अंदर बहुत बरकत है, या हम कहते हैं इसके अंदर नहूसत बहुत है, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में थमरू ले बिठा लेना है, कायनात में कोई भी चीज़ जो होती है, तसर्रुफ का मालिक, पूरे कायनात चलाने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। किसी के अंदर बजाते खुद उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजर अस्वद के बारे में क्या कहा? इन्नका हजरुन ला तनफ़ा वला तदुर, तो एक पत्थर है, ना नफ़ा पहुँचाता है ना नुकसान पहुँचाता है। लौला अन्नी राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बलका मा क़ब्बलतुका अबदा, अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए नहीं देखता तो मैं हरगिज़ कभी तुझे बोसा नहीं देता। क्या बताना चाह रहे हो? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इसमें सबक ये दे रहे हैं। कोई लोग अकीक़ का पत्थर लगा लेते हैं, कहते ये लकी है हमारे लिए। कोई लोग मखसूस किस्म की अंगूठी पहन लेते, कहते हमारे लकी है। कुछ लोग मखसूस किस्म का नंबर हमेशा उठा के रखते, कहते ये मेरे लिए बहुत लकी है। वही नंबर, वही रंग और उसी टाइप का आदमी, उसी टाइप के कपड़े, ये सारे चीज़ें अपनी तरफ से समझ लेते हैं कि मेरे लिए लकी है। तो नहीं, बरकत देने वाला बगैर किसी दलील के हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि इसके अंदर बरकत है या नहीं है। अगर कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस में अगर किसी चीज़ में बताए कि ऐसा करने से तुम्हें फ़ायदा होता है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हमारे लिए बरकत वाली है। सहाबिया कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल थे, पहले साबित होना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हैं। कोई और बाल लाकर कोई आदमी हमको धोखा दे के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हैं, तो फिर वो धोखे में नहीं आना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल थे, सहाबियात क्या करते थे? उसको एक जुलजुल में रखकर महफूज रखते थे, और जब भी कोई बुखार में आता था तो पानी में भिगाकर उस पानी के जरिए से वो लोग शिफा लेते थे और शिफा पाते थे। ऐसी कोई बरकत का जिक्र कुरान और हदीस में आया तब तो हम लेंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम नेक फाल ले सकते हैं, बुरे फाल नहीं लेना। नेक फाल की भी तहदीद कर दिया आपने, उसके भी हुदूद बता दिया। ऐसा नहीं कि हम जिसमें चाहे कह दे, जिससे कुछ बातें समझ में आती हो, ऐसे चीज़ें। मिसाल के तौर पे सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सुलह की बात हो रही थी कुफ्फार कुरैश की, तो सब इंतजार में थे कि पता नहीं क्या होगा। तो कुफ्फार कुरैश के पास से जो शख्स आ रहा था, उस आदमी का नाम था सहल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब हमारा मामला सहल हो जाएगा। यानी कि एक नाम से आपने अच्छा शुगुन लिया, वो तो जायज़ है, लेकिन बुरा शुगुन हम नहीं ले सकते। जैसा कि कुफ्फार कुरैश लिया करते थे, जैसे घर के बाहर निकले अचानक जो है परिंदा को उड़ाते थे वो लोग। अगर वो राइट साइड पर उड़ता था तब तो वो लोग खुश रहते थे, लेकिन लेफ्ट साइड पर उड़ता तो लोग कहते थे अब ये मेरे लिए अनलकी दिन है। तो दिन बजाते खुद ना लकी होता है ना अनलकी होता है। आदमी की मेहनत उसको लकी वाली बना देती है। फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्र। आदमी के अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। यही अगर कोई कहे ना भाई फला दिन में आदो समूद पर अजाब आया था, तो उन्हीं दिनों में तो आदो समूद की तरफ जो नबी भेजे गए थे बशकर तो निकले ना। अगर वो दिन उनके लिए नहुसत वाले थे तो वही दिन नबियों के हक में क्या थे? अच्छे वाले थे, नेक लोग। इसका मतलब वो दिन बुरा अच्छा नहीं हुआ। बुरा अमल का नतीजा बुरा होता है, अच्छे अमल का नतीजा अच्छा होता है, ये माना निकला। ये नहीं निकला कि वो दिन नहुसत वाला हो गया। और वहां पर अय्यामिन नहिसात कहकर जो बताया गया, उलमा इकराम ने यही तफसीर की, उनके हक में वो नहुसत वाला इसलिए कि उनके अमल खराब थे। वजह उसमें अमल है, तो अमल पे ज्यादा तवज्जो दे, हम अकीदे पर ज्यादा तवज्जो दे। फला चीज़ में असर है, फला चीज़ में असर नहीं है, बगैर दलील के अपनी तरफ से किसी भी चीज़ में उस वक्त तक ना कहे जब तक कि हमारे पास कोई प्रूफ ना हो। हमारे नाजरीन को इस सवाल का जवाब मिला होगा, तो हमारे पास एक और सवाल है, थोड़ा सा मुख्तसर सा, अगर इस पे आप जवाब दें। मेरा नाम कलीम है। मेरा सवाल ये था, क्या दूसरी दुनिया से लोग भी हमारी दुनिया में आते हैं? और कभी ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि फला शख्स जा रहा है जिसकी कुछ शक्ल कुछ अजीब सी है, रात में दिखा या सुबह में दिखा, तो कुछ लोग मुझसे इस बात को कहते हैं कि नहीं, दूसरी दुनिया से लोग भी इस दुनिया में आ सकते हैं और वो हमारी दुनिया में रहते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? जी, एलियन का कॉन्सेप्ट
हमारे भाई जो है ना कह रहे UFO जी, जैसे कहते हैं जो इनविजिबल जो होते हैं या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव को लोग एलियन का नाम दे लेते हैं। तो दरअसल उनके तसव्वुर में है कि कोई दुनिया से या दूसरे प्लैनेट से आ रहे हैं या और भी कुछ अलग दुनिया समझते। याद रखिए ये जो ज़मीन जिस पर हम रह रहे हैं ये बेस है इंसान की। दूसरे जितने भी गैलेक्सीज पाए जाते हैं, क्योंकि साइंसदान के मुताबिक 100 बिलियन गैलेक्सीज है, उस एक गैलेक्सी में 200 बिलियन तारे हैं, एक गैलेक्सी। तो हमारा जो गैलेक्सी है इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इस गैलेक्सी में 45 मसनूई सैयारे जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं। पहले साइंसदान ये कहते थे कि 9 प्लैनेट्स है, अब कह रहे हैं कि 8 है। बहरहाल ये तफसीलात बताने का मेरा मकसद क्या है? तफसीलात बताने का मकसद ये है कि आप कितने भी गैलेक्सीज का दावा कर लीजिए, इन सबको एक ही कायनात कहा जाएगा, दूसरी दुनिया नहीं कहा जाएगा। और ये दुनिया के अख्ताम पर फिर क़यामत है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इन्हीं प्लैनेट्स में से आने वाले जो भी हैं वो मखलूक़ात, उसको आपने UFO नाम दिया हो या फिर उसको एलियन आपने नाम दिया हो, असल में ले दे के बात फिर वहीं पर आती है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से हर कोई अपने अपने हिसाब से नाम दे रहा है। सूरह जिन अगर अच्छा पढ़ लिया जाए, जिनके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन जो हमने अलग अलग एपिसोड में अगर दी है, ये इंफॉर्मेशन हमको गलत सारे नजरियात से हमको बचाकर वापस लाएगी। अब भाई ने जो सवाल किया है कि हमें बाद औक़ात ऐसे अजीब अजीब सूरतें नज़र आती हैं, तो वो जिन ही हैं, क्योंकि जिनों को अल्लाह ताला ने रूप बदलने का, धारने का अल्लाह ताला ने उनको एक इख्तियार दिया, एक सलाहियत दी है, उसका वो मिसयूज़ करते हैं। कैसे डराते हैं? मिसाल के तौर पे आदमी जा रहा है अंधेरे में, अचानक ऐसा लगता है कि दरख्त के किसी करीब एरिया में पैर हैं और अचानक जो है उनको अपने आप को लंबा करने की चूंकि ताकत है, इतना बड़ा ऐसा लगेगा आसमान में कोई मुंडी उसका चेहरा है। तो बोले इतना बड़ा आदमी कहाँ है? घबरा के बुखार में पड़ जाता है। कभी जो है वो ऐसा बताएंगे अपने आप को कि उनके पैर पलटे हुए, वो कहेंगे अरे, जिसको चुड़ैल नाम रख दिया गया, चुड़ैल नाम, पैर पलटे हुए हैं। और चेहरा जो है इस तरीके से बनाएंगे कि एक आदमी को डराना मकसद होता है। और इनकी साइकोलॉजी है कि जब वो डरते हैं, अगर आप डरना शुरू कर देंगे तो वो और डरेंगे। तो हमारे लिए क्या सिखाया गया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सिखाया गया। यहाँ तक कि कहा गया अगर गधे की आवाज़ भी सुनते हो तो हमको क्या कहा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सिखाया गया। और अगर हमको मुर्गे की बांग, तो कहा फरिश्ते को देखकर ये मुर्ग की जो बांग सुनते अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक सिखाया गया। गधा जो रेंगता है, आवाज़ निकालता है, कहा वो शैतान को देखकर निकालता है। इससे क्या पता चल रहा है? गधा तक भी घबरा जाता है बाद वक़्त, या शैतान को देखकर गधा भी रेंगने लगता है। इनको जो सलाहियत है, ताकत है, इसका ये लोग मिसयूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये निकला सिर्फ अल्लाह ही की मदद साथ में हो तो आप इनका मुकाबला कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई भी हथियार नहीं। इसीलिए हिस्नुल मुस्लिम, मुसलमान का किला क्या है? उसके अदिया है, उसके दुआ है, अज़कार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी दुश्मन से बचता और अचानक किला आ जाए तो खुश होकर वो किले में पनाह ले लेता है। तो दुआओं का हाल भी यही है कि दुआएं उसके लिए, मोमिन के लिए किला है। जब ये किले में आ जाता है, लेकिन किला दुश्मन के हमले के वक्त पर नहीं तैयार किया जाता, हिफ्ज़ मा तक़द्दम, तूफान आने से पहले बंद बांधा जाता है। तूफान आते वक्त पर कोई बंद अगर बांधेगा तो कच्चा बंद होगा जो उसको बचा नहीं सकता। हमको हमेशा अज़कार करते रहना चाहिए। अगर कोई करीब आता भी है तो अपना रास्ता बदल लेता है, अगर हमारे पास अज़कार की ताकत मौजूद है। सुभान अल्लाह, यानी कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदना है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। हमें दुरूद, हमें कलाम पाक का ज़िक्र, दुआओं का सिलसिला जारी रखना चाहिए ताकि ऐन मौके पर, आखिरी वक्त पर हमें मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। शेख साहब, आपने हर सवाल का जवाब दिया, हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा, हमारे नाजरीन को बहुत फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, आप उस पर मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप से मैसेज भेज सकते हैं। जो ईमेल आईडी है उस पर आप मेल करें, अपने सवालात भेजें और अगले एपिसोड में हम उनका जवाब देंगे। अगले एपिसोड तक हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।